coordinator of the college, and other revered faculty members of the college, my dear students, a very good morning to everyone. It's a sunny day today, as the most enthusiastic and energetic young comrade sitting in front of me. A very warm welcome to everyone to this awareness program, which has been organized by Women Development Cell in collaboration with Department of Sociology and Department of English. To commemorate International Labour Day, which is celebrated every year across the world on 1st May, on International Labour Day. And why don't we celebrate this day? So then I googled about this day. Then I found in almost 80 countries of the world, this day is being declared as a National Labour Day. Has its roots in the past, in the late 19th century, when workers and labourers used to face many atrocities. They used to spend long working hours at their working place, and they had to face unsafe and unhealthy working conditions. Celebrating this International Labour Day is basically to honor the contributions of those working class. So today's program is being organized to celebrate International. First of all, I would like to invite on stage Dr. Ejaz Wani sir to express his views and thoughts about it. As your students, we celebrating the different days. We should aware the masses. These institutions, they are the best investors as far as the Sessions. In the first session, there will be a presentation that will be given by Dr. Ejaz Ahmed sir at Department of Sociology, and after that, we will be broadcasting. Esteemed Professor Anuradha Ma'am at Department of Environmental Studies, Professor Renuka Ma'am, Department of English, मेरे करीबी दोस्त डॉक्टर अजहर, Department of Political Science, और डॉक्टर मुशाहिदा, Department of Mathematics. Good afternoon to all of you. सब्जेक्ट्स से वो आप लोगों के सामने रखे हुए हैं अच्छी तरह से, और I am basically very wish to actually cooperate with us and make this program available. ये 1st May को मनाया जाता है, सेलिब्रेट लेबरर्स होते हैं, getting है ना? तो हमारे पास लेबरर्स की बहुत सारी कैटेगराइजेशन है. Particularly we are talking about that segment of the society जो who are particularly working is a informal sector, प्राइवेट सेक्टर कहते हैं. फॉर्मल सेक्टर में गवर्नमेंट के रूल, कवायद, कानून, प्रोसीजर्स है, नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट एज कंपेयर टू द इनफॉर्मल सेक्टर में जो लेबर लोग होते हैं. खैर ये दिन उन लोगों के लिए, इनफॉर्मल सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन के शिकार होते हैं, जो भी लोग कैपिटलिस्ट सोसाइटी में काम करते हैं, और उन लोगों पे ऊपर अत्याचार किया जाता है. अगर आप कल देखेंगे, कल के दिन में जो कल इंटरनेशनल ग्रीडी वर्ल्ड जो है, ये लालची दुनिया उन लोगों को कल के दिन एक ब्रेक देगी, ये तुम्हारे लिए स्पेशल दिन है, आप जाओ. लेकिन कल के दिन भी आप देखते होंगे कितने मजदूर पसीना बहा के, कल भी उन्होंने अपने आम दिनों की तरह कल भी उनको पसीना बहा के अपनी मजदूरी. फोकस है मेरी इस प्रेजेंटेशन की, जो मैंने टॉपिक बोला, एक तो सोशल डेप्रिवेशन एंड सेफगार्डिंग द लेबर राइट्स. दो इसके मुद्दे हैं कि क्या इम्पैक्ट होता है जब लेबर के राइट्स को वायलेशन किया जाता है. लेबर राइट्स की जो वायलेशन होती है, उससे इम्पैक्ट क्या होता है, कैसे हम, चैलेंजेस क्या है आज की सोसाइटी में कि लेबर्स के साथ में अच्छा व्यवहार किया जाए, हम नहीं कर पाते फिर भी. और साथ साथ में ये है कि कैसे हम लेबर, जो हमारा मजदूर तबका है, आई एम डायरेक्टली फोकस कर रहा हूं कि जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है, इवन तो फॉर्मल सेक्टर वाले भी बहुत सारी चीजों का, बहुत गलत होनियों का वो शिकार होते हैं, बहुत हरासमेंट का शिकार होते हैं, यू आर गेटिंग नॉट, और सब्जुगेशन का शिकार होते हैं. लेकिन हम बात करेंगे कि वायलेशन क्या होता है और कैसे स्ट्रेटेजी हम फेयर ट्रीटमेंट लेबर्स को कैसे दे पाए वर्क प्लेस पे. समझ रहे हैं? अब आपको बोलने समय ये फायदा होगा कि मेरा बाप मजदूर है, तो मैं अपने बाप के दिमाग में ये डाल सकता हूँ कि अगर तू मजदूर है, तेरे हकूक है. अगर तू 5 घंटे अपने काम करके बेचता है किसी मालिक को, लेबर क्या होता है? लेबर इज ए पर्सन हु एक्चुअली सेल देयर होल डे इन किसके यूज में? रोजी रोटी के यूज में.
5 घंटे जो सुबह से शाम तक 8 घंटे काम करता है वो बेचता है एक ऑनर को, और उस 5 घंटे 6 घंटे की उसमें उसको 500 रुपया दिया जाता है। ये लेबर, इसको कहते हैं लेबर, एक मजदूर। अब फिर क्या होता है उसके बाद, हम सोशल डेप्रिवेशन, जब इंसान एक्सेस जो उसके बेसिक रिसोर्स होते हैं, जब उनसे क्या हो जाता है वो लैक करते हैं, और जिनकी वजह से अब वो लैक हो गए, लेकिन उसकी जो सोशल इनइक्वालिटीज होती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होती है, इनके ये शुरू हो जाती है। और सोशल इनइक्वालिटीज और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की वजह से दो बहुत बड़े खतरनाक हादसे हो जाते हैं एक इंसान के साथ। वो हादसे क्या है? एक गरीबी का शिकार हो, एक मार्जिनलाइजेशन का शिकार हो जाता है। और इंसान जब गरीबी में पड़ जाता है, मजदूर होते होते भी किसी ने टीन नहीं लगाया, उम्र भर की मजदूरी की टीन नहीं लगाया, एंड यू विल सी द लार्जेस्ट एंड द रिचेस्ट बेगर इन इंडिया, जो आप देखेंगे बॉम्बे, जो सबसे जो भीख मांगने वाला है वो करोड़पति बन गया, लेकिन मजदूर करोड़पति क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि उसके साथ उसकी मजदूरी पूरी की पूरी नहीं दी जाती। वो सारे मजदूर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में 2023 में 2 मिलियन पीपल आर बेसिकली जो कि कहां पे चले गए? लेबर फोर्स में चले गए। और 5%, आप अंदाजा लगाओ, दुनिया की पॉपुलेशन का 5% तबका बेरोजगार है। हिंदुस्तान में 8% तबका, 133 करोड़ का 8% बनाओगे 4.5 मिलियन लोग बनते हैं। वो किसके? वो अनएम्प्लॉयमेंट है। वो क्या करेंगे? बीवी बच्चे भी हैं, पालने भी हैं उनको, मजदूरी। अब वो ट्रैप हो जाते हैं। जो इसके बाद जो मूवी वो स्क्रीनिंग करेंगे, इसको बाउंड्री लेबर कहते हैं। तो आप देखोगे कि किस तरह से बाउंड्री लेबर कैसे होता है कि मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, मैंने इससे 500 रुपया उधार लिया है, और फिर बोलेगा मुझे मेरा काम कर, जिसमें वो लगाएगा 500 में मुझे 1 महीने काम कराता है, क्योंकि मैं भाग भी नहीं सकता उससे। 500 रुपये खाए, अब भाग जाऊं तो क्या करूं? तो असल में दो इंसान, एक लेबर एक मजदूर शख्स जो है, दो खतरनाक अनहोनियों का शिकार होता है। एक तो पॉवर्टी और एक तो मार्जिनलाइजेशन। जिसको पॉवर्टी जो होती है, जिसको वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी हम कहते हैं। जब इंसान एक गरीबी के ट्रैप में आ जाता है, वो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन गरीबी उसकी क्या बन जाती है? चॉइस। वो गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता। ठीक ना? तो हम अपने जितने भी मजदूर, हमारा यही है कि जितने भी हमारे मजदूर तबके के लोग हैं, वी मस्ट enlarge their mental horizon। कि यार तुम इंसान हो, मजदूरी करना कोई गुनाह नहीं है, इट्स नॉट ए सिन। मजदूर तबके के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बनाए गए। जिस तरह से मैंने आपको पहले बोल दिया, लेबर कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 पहला एक्ट बनाया गया, फैक्ट्रीज एक्ट 48 में बनाया गया, लेबर डिस्प्यूट एक्ट बनाया गया। किसके लिए? कि लेबर की फलाह और बहबूदी हो। सोसाइटी में लेबर की एक आइडेंटिटी है। भाई मजदूरी करना, एक मजदूर करना होता है, और दूसरा आइडेंटिटी बरकरार रखते हुए, डिग्निटी बरकरार रखते हुए अर्निंग करना। तो हमारे लेबरर्स ऐसे हों कि डिग्निटी को बिल्कुल ऊंचा रखना है, फिर रोजी रोटी कमानी। लेकिन आज तक मजदूर तबका ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट चीजें। अब जो क्या इंपॉर्टेंस है लेबर राइट्स की, अगर लेबर राइट्स के बारे में जानकारी दी जाए लोगों को, तो इससे क्या फायदा होगा? फायदा होगा नहीं होगा? आप लोग मान के चलो, हाथ खड़े करो, कितने लोगों के, मान के चलते हैं, पूछेंगे कितने लोगों के मम्मी पापा जॉब करते हैं? 7 या 8 लड़के निकलेंगे। हमारे 80 लोगों में से 7-8 लोगों के मम्मी पापा जो है पेरेंट्स एम्प्लॉयड है, बाकी सारे मजदूर तबके से है ना। तो सब लोगों के दिमागों में यह अगर डाला जाए कि माय पापा, यू मस्ट प्रायोरिटाइज योर डिग्निटी जब भी आप काम करने जाओ। क्या लेबर राइट्स आर एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग डिग्निटी एंड फेयर ट्रीटमेंट इन द वर्कप्लेस। Safeguarding labor rights is crucial in addressing social deprivation and promoting social justice by prioritizing एक important चीज है fair treatment and equitable opportunities for all workers। एक तो फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए सबसे पहले। ये हम अपने घर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। हमने उनके साथ गलत व्यवहार कर जल्दी क्या शुक्र सिगरेट से 1 घंटा रेस्ट करता है। बिल गेट की एक खतरनाक कोटेशन सुनी होगी, इफ यू बोर्न इन ए पुअर फैमिली इट्स नॉट योर फॉल्ट। इफ यू बोर्न इन ए पुअर फैमिली इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट। अगर आप किसी गरीब घर में पैदा हुए, मैं अमीर में पैदा हूं, आपकी गलती है उसमें, मेरी गलती है।
ठीक है, जल्दी जल्दी बना लो। कितने बजे तक बना लो? मेरा नाम ताहिमा बानो है और मेरा सेकंड सेमेस्टर है और मैंने ये लेबर डे पे पोस्टर बनाया है। मैंने इसलिए ये पोस्टर बनाया है क्योंकि अभी मेरे जो फादर साहब हैं ये वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। Good. इसलिए मैंने ये पोस्टर बनाया है। ये पेंसिल वो ये भी यूज़ करते हैं, ब्रश, ये स्केल ये यूज़ करते हैं और ये जो हैमर है हथौड़ा ये भी यूज़ करते हैं। Good. और ये आरी वगैरह ये सब यूज़ करते हैं। तभी मैंने ये पोस्टर बनाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये पोस्टर बना के क्योंकि इसमें मुझे अपने फादर साहब की चीज़ों को इसलिए और मैं सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और मैंने यहाँ पे ये लेबर डे पे चार्ट बनाया है और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि सारे लेबर्स जो है वो कैसे इतनी धूप में मेहनत करते हैं और बताते हैं कि दिखाते हैं मतलब वो अपना दिन रात नहीं देखते हैं और अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। और ये क्या लिखा आपने? शायद पढ़ो, ये पढ़ो जरा। बोझ कंधों से कम करो साहिब, दिन मनाने से कुछ नहीं होता, इजरत में ना हो इजाफा भी काम बढ़ गया, मजदूर का दिन था और अमीर का आराम बढ़ गया। गुड, आप बोल। ये मैंने वगैरह सोने में सपने बनाए। हाँ। ये आर्ट बनाया, आर्ट के साथ ये इक्विपमेंट बनाए थे ये दिखाने के लिए कि लेबर का बहुत बड़ा हाथ है आर्ट को डेवलप करने में, तो इसके लिए हमने ये बनाया और लेबर। चलो बोलो। मेरा नाम प्रिया कोतवाल है और मेरा पार्टनर विकी भगत है। हमने ये मिक्स करके बनाया है अपने कोलैबोरेशन के साथ लेबर डे के दिन पे और हम बताना चाहते हैं कि लेबर हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं और इसी से हमने रिलेटेड एक कविता लिखी है जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। कविता पढ़ो। जो है, जिसके कंधों पर बोझ बढ़ा वो भारत माँ का बेटा कौन, जिसके पसीने से भूमि को सींचा वो भारत माँ का बेटा कौन, वो किसी का गुलाम नहीं अपने दम पर जीता है, सफलता का एक एक कण ही सही लेकिन है अनमोल जो मजदूर कहलाता है। थैंक यू सर। गुड, थैंक यू। इनके ये हमारा सर्टिफिकेट्स इधर आ जाओ। आओ इधर जरा।